In the name of Allah, the gracious, the most merciful. Nucleic acids are of two types. Number one, deoxyribonucleic acid, and number two, ribonucleic acid. In the last lecture, we have discussed about DNA or deoxyribonucleic acid, which is an important compound and it is the storehouse of information. Today, we will discuss about RNA, ribonucleic acid. RNA is made up of ribonucleotides. RNA basically is the chain of ribonucleotides and it is the polymer of ribonucleotides. DNA is double-stranded and RNA is single-stranded. In DNA, deoxyribose sugar is present, but in RNA, ribose sugar is present. RNA may be genetic or non-genetic. In RNA viruses, RNA acts as genetic material, but in bacteria and other higher organisms in the eukaryotes, DNA acts as genetic material and RNA is non-genetic in the cells of the higher organisms. Firstly, we discuss about characteristics of ribonucleic acid. The characteristics. Of RNA. Number one, like DNA, RNA is a polymer of ribonucleotides. यानी आरएनए राइबोन्यूक्लियोटाइड की चेन से बना हुआ होता है. नंबर टू, the RNA molecules occur as single strand. The RNA molecule occur as single strand. Which may be folded back onto itself to give double-stranded helical structure. जब आरएनए का सिंगल स्ट्रैंड बैक फोल्ड करता है तो ये डबल स्ट्रैंडेड दिखाई देता है. टू गिव double stranded structure. Actually, RNA हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना हुआ होता है, लेकिन चूंकि ये बैक फोल्ड करता है लिहाजा ये डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर की तरह मालूम होता है. डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर. Helical structure. Number three,
The nitrogenous bases form the usual complementary pairing. The nitrogenous bases form usual complementary base pairing, that is adenine always shares with uracil and guanine always shares with साइटोसिन, यानी एडेनिन यूरासिल के साथ ज्वाइन करेगा. बिटवीन एडेनिन एंड यूरासिल डबल हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट. इसी तरीके से गुआनिन और साइटोसिन always share each other, and in between the guanine and cytosine triple hydrogen bond is present. डीएनए मॉलिक्यूल डीएनए से बनता है, लेकिन आरएनए से आरएनए कभी नहीं बनता, बल्कि आरएनए भी डीएनए से बनता है. नंबर 4, आरएनए इज synthesized by DNA in a process known as transcription. यानी ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के जरिए डीएनए से आरएनए बनता है. मसलन ये डीएनए का डबल स्ट्रैंड है, ये बबल है जहां से डीएनए का स्ट्रैंड खुलता है और इस डीएनए से एमआरएनए वजूद में आता है. दिस इज द डीएनए एंड दिस इज द एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए. या कोई भी आरएनए है वो डीएनए से ही सिंथेसाइज होता है. खा वो एमआरएनए हो, खा वो टीआरएनए हो, खा वो आरआरएनए हो. और इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन का नाम देते हैं. डीएनए की जो अमाउंट है वो फिक्स होती है, बिकॉज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर कांस्टेंट इन एवरी स्पीशीज, एंड सो द अमाउंट ऑफ डीएनए इज आल्सो कांस्टेंट इन एनी स्पीशीज, बट the amount of RNA varies from cell to cell. Number 5, the amount of RNA varies from cell to cell.
आरएनए का जो अमाउंट है वो हर सेल में मुख्तलिफ हो सकता है। डीएनए इज लोकेटेड in the chromosomes of the nucleus, but RNA is located in ribosomes, nucleolus and cytosol. अब हम आरएनए की टाइप्स के बारे में देखेंगे। Many types of RNAs are present in the cell, but there are three main types of the RNAs. Types of RNA. There are three main types of RNAs. Number one, messenger RNA. इसे mRNA भी लिखते हैं। नंबर टू, ट्रांसफर आरएनए, यानी टीआरएनए। नंबर थ्री, राइबोसोमल आरएनए। या इसे आरआरएनए भी कहते हैं। These are the three main types of RNAs, and other types of RNAs are also available in the cell. For example, gRNA, guide RNA वगैरह वगैरह। ये तमाम के तमाम RNA, खा mRNA हो, खा tRNA हो, खा rRNA हो, ये डीएनए से सिंथेसाइज होते हैं, यानी न्यूक्लियस के अंदर डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन के अमल के जरिए सिंथेसाइज होते हैं, बनते हैं। all these three types of RNAs are synthesized from DNA. In the nucleus. And then moved out in the cytoplasm to perform their specific functions. Specific functions. मसलन ये एक सेल है, ये न्यूक्लियस है, इसमें डीएनए पड़ा हुआ है,
तो डीएनए से आरएनए बनता है। सेल है, डीएनए, ये आरएनए। तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, तो उन पोर्स से आरएनए जो है वो साइटोप्लाज्म में आता है। मसलन यहां पे राइबोसोम है, तो ये आरएनए इस न्यूक्लियस के पोर्स के जरिए बाहर आएगा, न्यूक्लियस से बाहर आएगा और राइबोसोम के साथ आकर अटैच हो जाएगा। तो अपना जो काम है वो अंजाम देगा। तो एमआरएनए का अपना काम है, टीआरएनए का अपना काम है, और आरएनए का और आरआरएनए का अपना काम है। तो ये मुख्तलिफ आरएनए जो है ये साइटोप्लाज्म में आकर अपना अपना काम जो है वो अंजाम देते हैं। तो अब हम इन 3 टाइप्स ऑफ आरएनए को बारी बारी स्टडी करेंगे। नंबर 1, मैसेंजर आरएनए। जैसा कि नाम से जाहिर है, मैसेंजर आरएनए जो है ये डीएनए से मैसेज को लेकर साइटोप्लाज्म में आता है और राइबोसोम के साथ अटैच हो जाता है, और राइबोसोम जो है उस डीएनए के मैसेज के मुताबिक प्रोटीन तैयार करते हैं। तो एमआरएनए टेक्स मैसेज फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द राइबोसोम्स। It takes the message from the nucleus to the ribosomes in the cytoplasm to synthesize proteins on the surface of ribosomes। यानी डीएनए जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है वो आरएनए को बनाता है, और इस अमल को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इसी तरीके से आरएनए जो मैसेज डीएनए का मैसेज लेके आता है राइबोसोम की सतह पर, और फिर प्रोटीन तैयार होती है। डीएनए के मैसेज के मुताबिक राइबोसोम का प्रोटीन तैयार करना, वो मैसेज आरएनए लेकर आता है, मैसेंजर आरएनए लेकर आता है। इसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन। Translation. So, formation of proteins by the ribosomes according to the information of DNA is called translation। यानी आरएनए जो डीएनए का पैगाम लेके आता है वो पैगाम प्रोटीन की शक्ल में ट्रांसलेट होता है, यानी कि पर्टिकुलर प्रोटीन्स बन जाती हैं। Messenger RNA consists of a single strand of variable length
लेंथ। असल में ये थ्रेड लाइक होता है, लॉन्ग होता है और थ्रेड लाइक होता है। इट्स लेंथ डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ द जीन। इट्स लेंथ depends upon number one, the size of the gene. Of the gene. Number two, type of protein for which it is taking the message, for which it is taking the message. जितना जीन का साइज बड़ा होगा उतना एमआरएनए का साइज भी बड़ा होगा। अब हम यहां पर एमआरएनए के साइज के हवाले से हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, अगर एक प्रोटीन की लंबाई 1000 अमाइनो एसिड्स पर मुश्तमिल है तो जो एमआरएनए का साइज होगा वो 3000 न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल होगा। यानी एक अमाइनो एसिड को 3 न्यूक्लियोटाइड स्पेसिफाई करेंगे, यानी 3 न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल एक कोडान होता है, यानी उसे कहते हैं ट्रिपलेट कोडान। फॉर अ प्रोटीन मॉलिक्यूल, फॉर अ protein molecule of 1000 amino acids, mRNA will have a length of 3000 nucleotides, यानी अगर 1000 अमीनो एसिड्स होंगे तो उसके मुकाबले में 3000 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। और 3000 न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल एमआरएनए का साइज होगा। एमआरएनए एमआरएनए की जो परसेंटेज है वो 3% to 4% है ऑफ द टोटल आरएनए इन द सेल। परसेंटेज of mRNA, percentage of mRNA. The mRNA is about 3 to 4% of the total RNA in the cell, यानी कि ये कुल आरएनए का 3 से लेकर 4% तक होगा।
अब हम ट्रांसफर आरएनए को डिस्कस करेंगे। द सेकेंड मेजर टाइप ऑफ आरएनए इज ट्रांसफर आरएनए। नंबर 2, ट्रांसफर आरएनए। और टीआरएनए। ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल्स are small each with the chain length of 75 to 90 nucleotides. ट्रांसफर आरएनए मैसेंजर आरएनए के मुकाबले में छोटा होता है और ये 75 से 90 राइबो न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल होता है। हर अमीनो एसिड के लिए एक ट्रांसफर आरएनए होगा। चूंकि 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स मेक द प्रोटीन्स इन द सेल्स, there are 20 different kinds of the transfer RNAs. So these RNA molecules are small as compared to the mRNA. देखें जी, ये ट्रांसफर आरएनए की फिगर दी हुई है। ये क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। ये 3 प्राइम एंड और ये 5 प्राइम एंड। बेसिकली ये सिंगल स्ट्रैंडेड है और ये चूंकि बैक फोल्डिंग की वजह से ये कहीं कहीं हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए बेसिस आपस में अटैच भी होते हैं, लेकिन बेसिकली ये सिंगल स्ट्रैंडेड है। यहां पर आप देख सकते हैं ये लूप्स हैं। यहां पर कोई ये डबल स्ट्रैंड वाली बात नहीं है और कोई जॉइनिंग वगैरह नहीं है। हम अलबत्ता कहीं कहीं बेसिस जो हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स के जरिए आपस में जुड़े हुए हो सकते हैं। मतलब यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकते हैं। ये 3 प्राइम एंड, ये एक एक्सेप्टर एंड है। अमीनो एसिड्स यहां पर आकर अटैच होते हैं, इसलिए ये स्टेम है और ये लूप्स हैं। इनको हम एक्सेप्टर स्टेम भी कहते हैं। एक्सेप्टर स्टेम जो अमीनो एसिड्स को एक्सेप्ट करते हैं। तो इसलिए इस फिगर को स्टेम लूप स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ये जो लूप है ये एंटीकोडॉन लूप है। एंटीकोडॉन लूप, ये जो लूप है ये राइबोसोम रिकॉग्निशन लूप है। इसी तरीके से ये वेरिएबल लूप है। ये मुख्तलिफ टीआरएनएस के अंदर इसका साइज मुख्तलिफ हो सकता है और ये इसे हम डी लूप कहते हैं। ये राइबोसोम रिकॉग्निशन लूप है। यहां पर अमीनो एसिड्स आकर अटैच होते हैं। अब इसके फंक्शन को हम देखते हैं। जैसा कि नाम से जा रहा है,
transfer these molecules, transfer the amino acid molecules towards the ribosomes. जहां पर प्रोटीन बनती है, जहां पर पेप्टाइड चेन बनती है, यानी कि ये अमाइनो एसिड्स को पकड़ पकड़ के लाते हैं और राइबोसोम तक पहुंचाते हैं. इट ट्रांसफर्स the amino acid molecule to the sites where peptide chains are being synthesized. Are being synthesized. There is one specific tRNA for each amino acid. There is one specific tRNA molecule for each amino acid. चूंकि 20 मुख्तलिफ किस्म के जो अमाइनो एसिड्स हैं वो प्रोटीन्स को बनाते हैं, इसलिए टीआरएनएस की जो अकसाम है वो भी कम से कम 20 हैं. सो द सेल विल हैव एटलीस्ट 20 काइंड्स ऑफ टीआरएनए मॉलिक्यूल्स. सो द सेल विल हैव 20 kinds of tRNA molecules. For one amino acid, there is one specific tRNA molecule. अब हम इसकी परसेंटेज की बात करेंगे. Transfer RNA picks up amino acids and transfers them to ribosomes. Transfer RNA picks up amino acids and transfer them to ribosomes where they are linked to form proteins. To form proteins. ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल्स साइटोप्लाज्म के अंदर मुख्तलिफ मकामात से अमाइनो एसिड्स को राइबोसोम तक पकड़ पकड़ कर ले आते हैं और राइबोसोम की सतह पर पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, यानी प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होती है, यानी ट्रांसलेशन का अमल होता है. तो अब हम बात करते हैं परसेंटेज की. इसकी परसेंटेज कितना होती है? परसेंटेज of tRNA. tRNA is
about 10 to 20%. 10 to 20% of cellular RNA. ये सेलुलर आरएनए का 10 से 20% इसकी परसेंटेज है। अब हम आरएनए की तीसरी मेजर जो किस्म है उसकी बात करेंगे, वो है राइबोसोमल आरएनए। आरएनए की तीसरी मेजर किस्म जो है वो राइबोसोमल आरएनए है। राइबोसोमल आरएनए सबसे ज्यादा, राइबोसोमल आरएनए की मिकदार सबसे ज्यादा होती है, इसकी परसेंटेज 80% तक है और ये राइबोसोम के साथ एसोसिएट होता है और ये प्रोटीन सिंथेसिस की मशीनरी को बनाता है। नंबर 3, राइबोसोमल RNA. It is the major portion of RNA in the cell and may be up to 80% of the total RNA. Of the total RNA. It is strongly associated with ribosomal proteins. With the ribosomal proteins, where 40 to 50% of it is present. tRNA acts as the machinery for the synthesis of proteins. On the surface of the ribosomes, the mRNA and tRNA molecules interact to translate
the information from genes to form particular protein. Particular proteins. This major type of RNA, which is the rRNA, is loop-like structure. ये एक उलझी हुई और ये लूप-like structure है, तो ये भी DNA से बनता है. तो ये भी DNA की ये भी ट्रांसक्रिप्शन के अमल के जरिए डीएनए से बनता है. तो आज के लेक्चर के अंदर तो हमने आरएनए और उसकी मुख्तलिफ टाइप्स को स्टडी किया. देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ द आरएनए: mRNA, tRNA and rRNA. mRNA is that type of RNA which takes the message from the DNA towards the ribosome for the formation of the particular proteins. tRNA is the transfer RNA which picks up amino acids and bring them on the surface of the ribosomes where proteins are synthesized. rRNA or ribosomal RNA is associated with the ribosomes and it acts as the machinery of protein synthesis. When mRNA and tRNA interact with one another and the process of translation takes place and proteins are synthesized. So, these are the major functions of the 3 types of the RNAs. Thank you very much.